جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں حکمران اتحاد میں شامل دوسری تمام جماعتیں بھی شریک ہوں گی اور سیاسی صورتحال پر ان کی رائے لے کر ایک مشترکہ کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند 1 سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ الیکشن ہوں گے وقت پر، آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کا اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے۔ اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جاتی ہے۔ کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کو یعنی آج کا دن متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اجلاس یہ قرار دیتا ہے کہ دستور پاکستان 1973 میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کو ریاستی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں، نامور قانون دانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ہے اور اسے دستور کی کھینچی ہوئی لکیر سے انحراف اور تجاوز سے تعبیر کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور پھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حالیہ انتخاب کے دوران
आर्टिकल 63A की तशरीह के तनाजुर में जो अलग अलग मेयारात और तशरीहात सामने आई हैं, उसने सियासी जमातों, वकला बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के खदशात को दुरुस्त साबित किया है। लिहाजा मुल्क को इस आयूनी और कानूनी और सियासी बहरान से निकालने के लिए मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। दूसरी करारदाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास जो आज मुनक़द हुआ, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से ज़ेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये सरबराही इजलास मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईन, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मज़ीद किसी ताख़ीर के बगैर सारद करे। इस ताख़ीर में तशवीश का पहलू ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहिद, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट, गैर जानबदार ऑडिटर्स की फॉरेंसिक तज्ज़िये से तमाम जराइम साबित हो गए हैं। साबित हो चुका है कि PTI ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। 88 गैर मुल्की शहरियों ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की, जिसमें इसराइल और भारत के शहरी भी शामिल हैं। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पार्टी के मरकजी दफ्तर के मुलाजमीन के निजी अकाउंट्स के जरिए मुल्क के अंदर और बाहर से भारी रकूम जमा की गई। इजलास करार देता है कि ये शवाहिद मुतकाज़ी हैं कि कानून अपना रास्ता ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरस्रार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। हालांकि साबित शुदा गैर मुल्की फंडिंग जौहरी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी एक नहायत संगीन पहलू है, जिस पर आंखें बंद करना कौमी सलामती के मफादात से खेलने के मुतरादिफ है। इजलास महसूस करता है कि इस अहम मुकदमे के फैसले के सामने आने में 8 साल की तवील ताख़ीर ने मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया है और इदारों की कमज़ोरी का तासुर मजबूत हो रहा है। ये सूरत हाल किसी जमहूरी मुआशरे के लिए मुफीद नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों की तंजीम और मालियाती उमूर से मुताल्लिक़ इस अहम मुकदमे में फ़ैसला सादर करके आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। इजलास इस अमर पर तशवीश का इजहार करता है कि फ़ौरन और ममनूई गैर कानूनी फंडिंग की मुर्तकिब जमात और इसके सरबराह ने मुल्क के आइन और कानून को मजाक बना रखा है, और इससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि रियासती इदारों की ढील के नतीजे में इस शख्स ने खुद को कानून से बारातर समझ लिया है। इस केस में फौरी फैसला आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये साबित हो सके कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी और ताकतवर मुजरिम कानून के ताबे हैं। ये 2 करारदादें हैं, और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में और दूसरे पंजाब के इलाकों में जो सैलाबी रेले आए हैं, और जिससे दर्जनों हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हैं, हज़ारों की तादाद में मवेशी जो है वो हलाक हो चुकी है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो आज के इजलास ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया, और हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो उनके तमाम कर्ज़े माफ़ करे, उनको आफतज़दा इलाका करार दे, और उस हवाले से उन्हें तमाम मराहत उनको दिए जाएँ। ज़रिए से में आते हैं सारे। बहुत शुक्रिया हजरात का। जनाब वाला मौलाना साहब आप इलेक्शन के बारी बारी ऐसे नहीं खालिद साहब आप बात करें, ऐसे नहीं खालिद साहब बात करें। तरीके इंसाफ का जो भाई सवाल है वो इलेक्शन कमीशन की बरतरफी है, क्या इस हवाले से कोई बात की है? वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? आया उनका वो मुतालबा तस्लीम? लघु गैर अक्ली कोई मुतालबा हम उनके सुनने के लिए तैयार नहीं है।
अपने हदूद में रहे, बस। जी हाफिज साहब। देखिए, मैं गुजारिश करूं आपसे, हम इनके पावर को समझते हैं। सोशल मीडिया, फेक अकाउंट्स पर उनका पूरे प्रोपेगेंडे का दारोमदार है। एक झूठी खबर के पीछे 1000 लाइक्स फेक्स डाल देते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये अवाम की आवाज़ है। हम अवाम की आवाज़ को जानते हैं, हम अवाम की आवाज़ में रहते हैं और हम इनके ये जो छोटी मोटी तितलियाँ मितलियाँ आगे पीछे होती हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मजबूती से और संजीदगी के साथ, बड़े खुद एतमादी के साथ हम फैसले करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान, एक मिनट मैं दे रही हूँ जी। उस्मान, मौलाना साहब, आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले। उनके ऐसे बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिसके ऊपर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एक्शन ले। हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जिस तरह से इस सिलसिले में हुकूमत के अंदर हुकूमती सतह पर कुछ फैसले हुए हैं और वो 1-2 दिन के में सामने आ रहे हैं। वो सारे बड़े बड़े जराइम, ये जुर्म का मगरमच्छ है। इससे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान की तारीख में शायद आपको मिलेगा ही नहीं, जो कानून से अपने आप को बालातर समझता है, अब इसके गिरबान में हाथ पड़ेगा। और ऐसा आसान नहीं है कि वो इन चीज़ों को हजम करेगा। कभी कहता है जी अमेरिका ने मुझे हटाया है, अमेरिका तो तुम्हें लाया था। हाफिज साहब, और आपके घर का मकान का E7 में किराया 8-9 साल तक देता रहा है, और जिसने ये बात कही है वो कहते मैं अदालत में जाने के तैयार हूँ उनके साथ। जी हाफिज साहब। मैं गुजारिश करूं आपसे, हमने इस हुकूमत को हटाने से 1 साल पहले जलसों में कहा, मैंने खुद कहा कि मसला जो माशी बहरान पैदा हुआ है ये बड़ा चैलेंज नहीं है। मुल्क को दोबारा माशी तौर पर उठाना ये बड़ा चैलेंज होगा, और वही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या मुश्किलात हमें दरपेश हो रही हैं। और हम आज, मैं कम से कम आप समझेंगे कि शायद वो अपने अंदर की कमज़ोरी बता रहा है, लेकिन अब भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो अनासर मौजूद हैं जो हुकूमती फैसलों को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और पुराने निज़ाम के तसलसल हैं। इन सब के लिए हमने कहा है कि इसका फौरन इलाज होना चाहिए। मौलाना ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि PDM का इजलास जारी रहेगा और उसमें दीगर जमातें भी शरीक होंगी, क्या आप पीपल्स पार्टी को वापस PDM में शामिल कर रहे हैं और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की उनको भी शामिल कर रहे हैं? एक तो ये मेरा सवाल है, और दूसरा ये बता दें क्या आप भी कोई सिस्टम में मुदाखलत हो रही है, क्योंकि अब तक तो यही मौक़िफ़ रहा है कि सब न्यूट्रल हैं, क्या मुदाखलत? आपने जो बात कही है मैं उसका ज़रा एक और पहलू से जवाब देना चाहता हूँ जी। एक तो सरदस्त यही फैसला हुआ है कि अगला इजलास जो हमारा होगा उसमें तमाम हुकूमती इत्तेहाद के अरकान सारे शामिल होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुल्क की मईशत से बराह रास्त जिन महकमों का ताल्लुक़ है उनको फ़ौरन हिदायत दी जा रही हैं कि वो मंगल को और बुध को हमें ब्रीफिंग दें और अपनी कारकर्दगी हमें बताएं ताकि हम उन पर उनकी मजीद आगे रहनुमाई करें। मौलाना साहब, इमरान खान ने जो PDM से मुताल्लिक़ एक बयानिया बना दिया है, आप ऐसा क्या है किस तरीके से काउंटर करेंगे उस बयानिया? मतलब उनके पास क्या बयानिया है? झूठ बोलना, बस ये बयानिया है। गलत बात कह देना ये बयानिया है। यार खुदा का खौफ करो यार, आप लोग बड़े संजीदा लोग हैं, इल्ज़ाम लगा देना तो बस ये बयानिया है। लिहाजा इन झूठे बयानिए और रोज़मर्रा के इल्ज़ाम तराशियों की सियासत, इसके बुनियाद में कोई नज़रिया नहीं हुआ करता। और ये बैसाखी, पता नहीं कहाँ से कोई बैसाखी मिलती है उनको। जी बहुत शुक्रिया। अब माइक बंद हो गया तो कहाँ से ऑन करूँ? जी आ रही है आवाज़? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा और आई थिंक फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा
नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला आना था, और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फ़ैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो ज़ाहिर है फुल कोर्ट में तो बहुत मुअज़्ज़ज़ जज साहबान शामिल हैं जो ऑनेस्ट हैं, जिनकी शोहरत दागदार नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में इस किस्म का फ़ैसला करना वो मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगी नामुमकिन हो जाता, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना। और अगर नीयत में कोई ख़राबी ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफ़ी ना करनी होती, तो आपको कोई आर नहीं था, कहते जी फुल कोर्ट बनाएं, बैठें, चैलेंज करें। लेकिन देखें, जब आपने चंद हफ्ते पहले एक बिल्कुल फ़र्क फ़ैसला दिया, और इस फैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया, तो ऐसी चीज़ का जो वो फुल कोर्ट तो ये न करता, तो जाहिर है फिर फुल कोर्ट तो नहीं बनाया, इसीलिए इनकार हो गया। मुझे पूरा यकीन था, हमारे कई साथियों ने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा, मैंने उनको कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, फुल कोर्ट तब बनता जब इंसाफ होता और उस पर स्टैंप लग जाती। ये फैसला करना था तो फुल कोर्ट नहीं बना। अब फैसले की तरफ आ जाए, मुझे उस पर भी बात करनी है। देखें, फैसले में लिखा, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाती हूँ कौम को। Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. यानी कि अगर अनजाने में जज साहब से, किसी जज साहब से कोई गलती हो गई है, तो उसके बाद उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को, उसकी तस्हीह करे और करेक्ट व्यू ले लॉ का। अब ये बताएं कि गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये कैसी तस्हीह है भाई, और वो कैसी गलती थी। और फिर आप ये देखें, हमारे 25 मेंबरान भी इमरान की झोली में, और चौधरी शुजात हुसैन साहब के 10 मेंबरान भी इमरान की झोली में। ये है गलती, और ये है उस गलती की तस्हीह। तो ये मैंने पहले भी टीवी पर, ये ट्विटर पर मैंने लिखा कि ये अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार कत्ल जो है वो इंसाफ का हुआ है, अदल का हुआ है। मेरा ख्याल है कि गलती की तस्हीह अगर करनी थी तो इकामा की गलती, जिसको पूरी दुनिया ने, जिसका मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया में वो एक रहती दुनिया तक एक ऐसा मजाक बन गया है जिसकी कोई दुनिया में जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके बाद तस्हीह करनी थी। तो इमरान खान को जो आपने सर्टिफिकेट दिया साकिब निसार ने, सादिक और अमीन का, आप उस गलती की तस्हीह करते हो। सादिक और अमीन ने 4 साल उस सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट के साथ जो पाकिस्तान की हर शोबे में तबाही की, अगर आपने गलती की तस्हीह करनी थी तो एक झूठे शख्स को, एक बेईमान शख्स को, एक चोर को, एक मुजरिम को आपने सादिक और अमीन बना के कौम के सर पे 4 साल मुसल्लत रखा। गलती की तस्हीह आपने करनी थी तो आप, जो शौकत अजीज सदीकी साहब का एक बहुत स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन था जिसने सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया, आप उनकी सुनते। वो रिटायर हो गए लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज भी उनका मुकदमा जो है ना वो नहीं सुना जा रहा। वो शख्स अपनी नौकरी की मुद्दत पूरी करके चला गया। तस्हीह करनी थी तो अरशद मलिक साहब ने इतना बड़ा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि नवाज शरीफ के साथ जितनी भी ज्यादती हुई, जो नाइंसाफी हुई, वो मुझे ब्लैकमेल करके ली गई। तस्हीह करनी थी तो उसकी करनी थी। आप भले माफी ना मांगते, नवाज शरीफ साहब से उनकी की हुई ज्यादतियों पर दूरबीनें लगाकर आप देखते रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ दुनिया भर में कोई सबूत मिल जाए, वो आपको नहीं मिला क्योंकि सबूत था ही नहीं। सबूत इसलिए नहीं था कि गुनाह था ही नहीं, जुर्म था ही नहीं। लेकिन आपने वो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती को बरकरार रखा, बल्कि बजाय इसके कि तस्हीह करते आप ज्यादती दर ज्यादती कर रहे हैं। और आपने किस तरह कल परसों नवाज शरीफ के साथ फिर ज्यादती की, वो भी सुन लें। पहले जब नवाज शरीफ जमात का सरबराह है और अगर उसका कोई मुकदमा आता है अदालत में, तो
عدالت یہ تعویلیں دیتی رہتی ہے, جسٹیفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ عدالتی پارٹی کا سربراہ یا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. اور جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے. یہ اس قسم کی باتیں تو کوئی بچے بھی نہیں کرتے آج کل. بہت حیران کن. میں آنیسٹلی جب یہ فیصلہ آیا تو میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی, ہمارا تو ووٹ بیس بھی چارج ہو جاتا ہے, ہمارا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ ہوتا ہے, لیکن کس کو نقصان ہوا؟ میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین ادارے کے اندر سے نہیں, باہر سے نہیں ہوتی. میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی, مولانا صاحب نہیں کر سکتے. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا, آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے. اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزرائے اعظم آپ نے مقرر کرنے ہیں تو آپ اسمبلیوں کو, پارلیمنٹ کو, پنجاب اسمبلی کو تالا لگا دیں. اب کچھ بھی آپ کر لیں, پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے. وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو ان کے 10 ووٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں ان کو وزارت اعلیٰ حمزہ سے چھین کر ٹرے میں رکھ کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 3 ممبر بینچ نے دی ہے. یہ عنایت جو ان پر ہوئی ہے وزارت اعلیٰ کی, یہ 3 ممبر بینچ کی دین ہے. اور پھر آئین کی تشریح آپ چہرے دیکھ کر اور پارٹیاں دیکھ کر اور پارٹی ہیڈ دیکھ کر بدلتے ہیں. نواز شریف ہو تو آئین کی تشریح کچھ ہوتی ہے, اس کے چند ہی ہفتے بعد اگر عمران خان ہو تو اس میں آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے, آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. یہ ہے آپ کا انصاف. اور جس آئین کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا, پاکستان کے سیاستدانوں نے بنایا, عوامی منتخب نمائندوں نے بنایا, اس آئین کو ایک 3 ممبر بینچ جو کہ خود کنٹروورشل ہے, جس کے اوپر انگلیاں اٹھ چکی ہیں, جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہر فیصلے میں شامل ہوتا ہے, اور جان بوجھ کے اسی بینچ کو لایا جاتا ہے جو خود کنٹروورشل ہو گیا ہے. آپ اس بینچ کے ذریعے آپ پاکستان کے آئین کو عدالت سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, اس آئین کی آپ دھجیاں اڑا دیتے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس قسم کے فیصلے ہم سر جھکا کر قبول کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم اس آئین کے رکھوالے ہیں. اگر تالا لگانا ہے تو لگائیں پھر پارلیمنٹ کو. اور پھر ڈیپٹی اسپیکر اگر مسلم لیگ نون کا ہو تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو عدالت میں کٹہرے میں بلا کر کھڑا بھی کیا جائے گا, اس کی رولنگ بھی غلط قرار دے دی جائے گی. لیکن ڈیپٹی اسپیکر اگر عمران خان صاحب کا ہو تو عدالت اس کو بالکل نہیں بلائے گی, بلکہ عدالت قاسم سوری کو جال سازی کرنے کے اوپر 2.5 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے دیا ہوا ہے. یہ ہے تفریق, یہ ہے ڈسکریمنیشن, یہ ہے عدالتی جس کو کہتے ہیں نا انصافی. پھر آپ فارن فنڈنگ کیس پہ ابھی مولانا صاحب نے قرارداد آپ کو پڑھ کے سنائی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاس کی ہے. پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے, ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں, وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے. 8 سال کی تاخیر. سوچیں ہمارے لیے, مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا, باپ اور بیٹی 10 مہینے روز, سم ٹائمز 5 days a week, سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے. میں اور نواز شریف صاحب صبح 4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے اور 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے, روز بلا ناغہ 8-10 مہینے, جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی. اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا. $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی,
350 इंटरनेशनल कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली, जिसमें भारतीय और इसराइली शहरी शामिल हैं। अब ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक्य है। आप सिर्फ, मैं यहाँ क्योंकि मौलाना साहब खड़े हैं, मैं अपनी बात चले छोड़ दें, अगर मैं मौलाना साहब की बात करूँ, खुदा न खास्ता मौलाना साहब ने ये फंडिंग इसराइल से और भारत से ली होती और पाकिस्तान की दुनिया भर की 350 कंपनी से ममनुआ जाली तरीके से, पता नहीं वो कैसा पैसा था जो आया था, डॉलर्स में आया था, वो ली होती, तो क्या हमारे साथ यही बर्ताव होता जो अब हो रहा है? इसकी जगह नवाज शरीफ साहब होते, मैं होती, तो क्या होता? वो ऐसा सलूक होता कि सोच के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। अभी इकामा था तो आज तक सजा पे सजा, आज तक इकामे पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया और फिर वहां पर दिल को तसल्ली नहीं हुई, उनकी प्रेसिडेंटशिप पार्टी की भी छीन ली, क्योंकि उस वक्त पार्टी सदारत ही सब कुछ हुआ करती थी। अब तो सुना है कि पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो गई है। फिर हर साल ईसीपी से झूठ बोलता रहा, झूठे सर्टिफिकेट्स जमा कराता रहा, झूठी डिक्लेरेशंस जमा कराता रहा, अपने गैर मुल्की अकाउंट्स छुपाए, मुलाजमों के नाम पर पैसे मंगवाता रहा, उनके अकाउंट्स में पैसे मंगवाता रहा खुफिया तरीके से। और फिर जब ईसीपी ने सवाल किया तो कहा अपने चंद लोगों के नाम लेकर पार्टी के उनके सीनियर मेंबरान ने उन पे डाल दिया सारा कुछ। हालांकि गजब खुदा का कि सारे जो काम हुए हुए फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के सिग्नेचर्स के साथ हुए हुए, उसके दस्तखत है मौजूद। किस तरह वो इससे आंख चुरा सकता है या किस तरह मजलूम बन सकता है? मैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूं। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूं कि जो खुफिया अकाउंट्स इसने आज तक खुफिया रखे हुए वो कौम के सामने लाए जाएं। एक एक गबन, एक एक गद्दारी जो इसने पाकिस्तान की कौम में के साथ फॉरेन फंडिंग की सूरत में की हुई है, वो एक एक जो उसका सारे हकायक हैं वो कौम के सामने लाए जाएं और बिला ताखीर लाए जाएं। और आप ये देखें कि इमरान खान की हैसियत पाकिस्तान की सियासत में एक बुली से ज्यादा की नहीं है। वो ईसीपी चेयरमैन जिसको इसने खुद अपॉइंट किया, ये जो क्या नाम है ईसीपी चेयरमैन का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो इमरान खान के अपने अपॉइंटेड हैं और पहले उनकी दिन रात तारीफें हुआ करती थी। तो ये जो बुली है इमरान खान, इसकी हैसियत एक बुली से ज्यादा नहीं है। हर इसमें वो ट्रेट मौजूद है जो एक बुली का होता है। और आप ये देखें कि जब इसको किसी चीज का खौफ होता है क्योंकि इसने वो गुनाह किया होता है, तो ये उस अदारे के सरबराह को अटैक करता है। पहले से ये उसको पता था कि फॉरेन फंडिंग की अब फाइंडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, फैसला महफूज हो चुका है। तो आप देखें किस तरह उसने ये अटैक जो है वो ईसीपी के चेयरमैन के ऊपर लॉन्च किया। उसकी वजह ये है कि चोरी की हुई है, चोरी से हाथ रंगे हुए हैं, गलत काम किए हुए हैं। वो जो ममनुआ फंडिंग आई है वो कहाँ खर्च हुई है इसका हिसाब तो बाद में होगा। वो इस पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए खर्च हुई है, इस पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उठा के बाहर फेंकने के लिए खर्च हुई है, इस पाकिस्तान में साजिशों को पनपने के लिए वो फंडिंग खर्च हुई है। वो पाकिस्तान के खिलाफ फंडिंग थी, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, उसमें हम बाद में जाएंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है कि ये बुली बन जाए और आकर गालियां निकाले और अपने हक में फैसले ले। ये नहीं होगा। ये 3 मेंबर बेंच तो कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते। और आखिरी बात, अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीपी के सामने धरना देंगे। जी एक मिनट, जी एक मिनट भाई उनको कर इसके बाद देखिए मैंने अभी कह दिया कि चौधरी परवेज अलाई की हैसियत एक अदालती वज़ीर आला से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और 10 मेंबर्स का कोई ख़ास नहीं होता, 10 मेंबर्स उधर जाते हैं तो इधर भी आ सकते हैं। अगर ऐसी ही पॉलिटिक्स करनी है तो वो हमें इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर आती है। लेकिन जो आपने मफामती और मज़ामती की बात की वो ज़रा सुन ले
کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے، تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں. یہ ہماری ذات کا مقصد نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی ایجنڈا ہے، قومی مقصد ہے. اس میں یہ کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے، مزاحمت کرنی ہی پڑے گی. یہ جب ظلم ہوتا ہے، ظلم کو سہنا ظلم سے بڑا ظلم ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاعت حسین نے آپ کا کھل کر ساتھ دیا، لیکن آج ان کی پارٹی نے ان کے عہدے سے خود ہٹایا ہے. کیا پھر آپ اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی ایک سیکنڈ، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تردید آ گئی ہے جماعت کی طرف سے. پنجاب کی صورتحال پر کیا حکمت عملی اختیار پی ڈی ایم کر رہی ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس حکومت سے وہ جب ہم وہاں تک آئیں گے تو آپ کو اطلاع کریں گے. آخری سوال. جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹک پار سے مداخلت ہو رہی ہے، اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو 5 ججز ہیں ان کو آج اس میں مسترد کر دیا گیا MCS سے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز حسن نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ سارا کیا ہے. یہ بتائیے گا یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کے پیچھے کوئی مداخلت تو نہیں ہے، کوئی بیک ڈور؟ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ وہ 5-4 سے جو فیصلہ آیا ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ جو ایک اینٹی PMLN گروپ بنانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو آج شکست ہوئی ہے. وہ کسی اگر پارٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، کسی کے خلاف ایک گروپ بنانا چاہتے تھے، مجھے خوشی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوا آج. جی بس آخری سوال پلیز. جی خالد صاحب. پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس وقت جو تسلسل کا خلاف ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ مسئلے بننے والے سانسد کے ہوتے ہیں، ایک انتقام کی جو پالیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے. شاید ماضی میں ہوا تھا ان تمام افراد کے درد مقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. کیا چیز؟ دیکھیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اٹھا کے نشانہ بنا دینا. ہم لوگ ہیں ابھی، اور یہ جو حکومت عدالت کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو عدالت کے یہ بنے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی عوام کی قوت سے یہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اسلام آباد میں پی ٹی ایم کی قیادت میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی.